Hello, bankers. A very good evening to all of you. Welcome back. Welcome to JIB CIB Prep. So, guys, in this particular session, we are going to discuss our unit number 16, which is all about cash flow and fund flow statement, right? So, we already done with our these particular units. I hope आप सभी ने ये देख लिए होंगे. So, balance sheet equation, preparation of final accounts, company account 1 and company account 2. ठीक है. So in this particular session we are going to discuss around cash flow statement. Okay, so let's quickly go through the course content, the subtopics and all. Then with the help of concepts and MCQs, we are basically going to practice number of questions based on this unit, right? So cash flow statement, this first of all, guys, one important thing, like you will get at least 2 marks question based on this particular unit. And how to secure those 2 marks, like अगर आप इसको पूरा अच्छे से देखेंगे, I'll make sure कि you will be able to score दैट लाइक जितने भी मार्क्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो सब, ठीक है. सो मोस्ट ऑफ टाइम आपका 90% टाइम द क्वेश्चन इज अराउंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ द final reports of a company which they have to prepare, ठीक है. So whenever we talk about the final reports of a company or final accounts, so these are like balance sheet, profit and loss account and cash flow statement. It is a mandatory documents or report which जॉइंट स्टॉक कंपनी दे हैव टू प्रिपेयर, राइट, एंड दे हैव टू डिस्क्लोज. सो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, ठीक है. किस टाइप के क्वेश्चंस पास्ट में पूछे गए थे एंड व्हाट आर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, आई विल लेट यू नो इन दिस वन, ठीक है. सो फर्स्ट वन आपका इंट्रोडक्शन, कंपोनेंट ऑफ कैश फ्लो, लीगल रिक्वायरमेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, दैट मीन्स accounting standard 3 and Indian accounting standard 7, ठीक है. So this is the legal requirement. Format of preparation of this, benefit, ठीक है. Then we have fund flow and preparation of fund flow statement. So like we will start with the basic introduction or basic discussion. As I said, like as per accounting standard 1 and Indian accounting standard 1, so companies in India, they have to prepare their final reports that include balance sheet, profit and loss account and cash flow statement, ठीक है. So cash flow statement, like if you talk about these remaining two statement, income statement, which we generally commonly known as profit and loss account, ठीक है. So through this particular report, we generally get to know about the net profit or net losses from the overall trading and other activities. So profit and loss account, जिससे हमें net profit और net loss के बारे में पता चलता है, ठीक है, after deducting all the expenses and all, ठीक है. Balance sheet statement, which is also known as position statement, and the equation is asset equal to liabilities plus owners equity, ठीक है. तो ये दोनों हमने अपने पिछले जो क्लासेस हैं उनमें बहुत अच्छे से समझ लिए हैं. आई होप उतने ही अच्छे से आपको समझ में भी आए होंगे, ठीक है. नाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट, इट इज like it is very simple, ठीक है. So it is all about the inflow and outflow of cash during the beginning of the year or at the end of the year, ठीक है. तो पूरे साल भर में आपका जो ओपनिंग बैलेंस था कैश का वो कितना था और एंडिंग कितना था, दैट मीन्स जो इनफ्लो आउटफ्लो आपके हुए हैं वो सब, ठीक है. अब ये like what we have to account in cash flow statement, inflow and outflow of cash during that respective accounting year, okay, or accounting period. But there are two challenges, like accounting standard 3 and Indian accounting standard 7. सो इन्होंने इसकी जर्नी को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना दिया, ठीक है. सो दे जनरली डायरेक्टेड कंपनीज व्हेनेवर यू विल प्रिपेयर योर कैश फ्लो स्टेटमेंट, so as per these particular accounting standards, these statements are further categorized among three different parts, okay. So first one is operating activities, then we have financing activities, and then we have investing activities, ठीक है. Then the total of all these particular one, ठीक है. So this is the one. So now अब यहाँ पे challenge क्या होगा कि what type of expenses or income comes under operating activities, finding out that particular one, ठीक है. what comes under financing activities, what comes under investing activities. तो अगर आपने कॉन्सेप्ट वीडियो देखा है तो आप 100%, आई कैन मेक श्योर कि आप 100% राइट आंसर्स आपका यहाँ पे देने वाले हैं. दो आई विल क्विकली रिवाइज दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. 100% आपका इसका रेशियो रहा है कि एग्जाम में पूछा गया है, और 1 क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स, ठीक है, जिसमें वो आपको व्हाट द एग्जामिनर विल डू, ठीक है. सो वो आपको एक ऐसे एक तरफ आपकी हेड दे देगा,
कि पर्टिकुलर्स आप जैसे आपका एक्टिविटीज ऑपरेटिंग, आपका फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, दूसरे तरफ आपको एंट्रीज मिल जाएंगी, देन यू हैव टू मैच दिस पर्टिकुलर वन. सो फॉर करेक्ट मैच यू विल गेट 2 मार्क्स. ठीक है, एक क्वेश्चन इस तरीके का. दूसरा, इट कैन बी अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कि फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन यू हैव टू फाइंड आउट like which of the following is investing activity or financing activity. Third type is numerical. So they'll give you information like some entries are there here, some entries are there. So based on this given information you have to calculate cash flow from financing activities or investing activities or operating activities. ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे एंड वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस. आपका जो PYQs हैं और जो एक्सपेक्टेड हैं वो भी. ठीक है, so Accounting Standard 3 and Indian Accounting Standard 7 provide detailed guidelines for preparing this particular one. And companies, they have to prepare among three different parts. ठीक है, so this chart is going to help you out. ठीक है, तो ये आप लोग, ये मैंने आपको जब हमने फाउंडेशन भी किया था तब भी मैंने आपको ये चीज बताई थी. ठीक है, so what comes under operating activities, what comes under financing, what comes under investing. I'll come to this particular one. Before that, I'll quickly summarize the different type of activities. So first one is operating activities. So operating activities are core revenue generating activities. These are something related to the related to revenue, like the sale or purchase or activities or income and expenses or inflow and outflow of cash related to आपका सेल्स एंड परचेज. ओके, तो जैसे हमने कोई सेल किया, हमने कोई रेंट पे किया, हमने कोई लेबर चार्जेस पे किया, आपका सैलरीज पे किया. ठीक है, सो दैट इज लाइक सेल्स इज इनफ्लो, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, आपका फ्रेट चार्जेस, आपका सैलरी, रेंट, दीज आर आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. ठीक है, so principal revenue generating activities of an organization and other activities that not are thus. ठीक है, तो क्या क्या इसमें आता है मेजर. so these are some major entries. ठीक है, जैसे कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड. ठीक है, हमने कोई आपका सेल्स किया तो उससे हमें जो कैश रिसीव हुआ. ठीक है, कैश पेमेंट टू सप्लायर्स. ठीक है, तो दिस इज काइंड ऑफ लाइक ये हमारा क्या है, इनफ्लो है, ये हमारा क्या है, आउटफ्लो है. ठीक है, कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टी, फी एंड कमीशन. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो इनफ्लो इंक्लूडिंग डिविडेंड ऑल्सो. ठीक है, जो डिविडेंड है वो भी इसमें आपका आएगा. कैश पेमेंट टू और ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज, दैट मीन्स पेरोल ड्यूज एंड ऑल. ठीक है, सो सैलरी एंड ऑल. ठीक है, सो दिस इज अगेन आउटफ्लो. Cash receipt and payment of an insurance entity for premium and claim. So if you are paying premium, so it is an outflow, and if you are claiming insurance policy, so it is an inflow. ठीक है, तो ये आपका जो एक्टिविटीज है वो आपका किस में देखने के लिए मिलेंगे, आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर या ऑपरेशनल एक्टिविटीज के अंदर आपका. ठीक है, सो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका एन एंटिटी, तो ये आपका बेसिक है. ठीक है, द डायरेक्ट, जैसे आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर फर्दर डिवाइडेड बिटवीन टू पार्ट. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड where major classes of gross cash receipt and gross payments are disclosed. Indirect method, profit or loss is adjusted, which is also known as net method, for the effective of non-cash nature. Any deferrals or accrual of past or future operating receipt or payments. ठीक है, तो दो तरीके से हमने इनको डिस्कस भी किया था. सेकेंड एक्टिविटी इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. ठीक है, सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किससे रिलेटेड है आपका, विच जनरली हेल्पिंग टू बिल्ड दी which is like the impact of investing activities are like basically they increasing or decreasing the operational capacity of that particular firm, right? So it is something related to, let's say, property, plants, equipments, tangible, okay, goodwill, patent, copyrights, trademarks. So if you are, let's say, if you are increasing the capacity of the organization, अगर आप इनको buy करोगे, so it is outflow. Let's say we purchase one new office building, we purchase new equipments, we purchase new trademark or copyrights and all. So that is an outflow from investing activity. Another side, if you are selling that particular one, okay, let's say if you are selling some existing trademark or existing equipments and all, okay, so that will be आपका दिस इज आउटफ्लो एंड दिस विल बी योर इनफ्लो. ठीक है, तो अगर आप अपनी कोई मशीन को बेच रहे हो, ऑब्वियसली योर ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू रिसीव मनी, सो दैट इज द वन. ठीक है, so any cash flow from acquisition or disposal of long-term asset and other investment not included in cash equivalents. So they are generally known as आपका investing activities, which include major like cash payment to acquire
property, plants, equipments, intangible like goodwill, trademark, patents, or other long-term asset. Okay, so this is an outflow for the company. Cash received from the sale of property, plants, equipments, or intangible or other. So basically, proceed from the sale of machine or building and others. So this is inflow. ठीक है. Cash inflow from sale of equity and debt instrument of other entity in joint ventures. Okay, so this is inflow. See, these two this is very very important one. ठीक है. आप लोग ना इसमें बार बार कंफ्यूज होते हो. ठीक है. So I have like ये मेरा एक्सपीरियंस है लास्ट 3-4 years के अंदर. हर साल बैंकर आते हैं and they get confused this particular with this particular one. Okay, so like let's say your investment is like if you are acquiring shares of some other company or if you are granting some loan to other company, that is your investment, because you are having some sort of like you are going to receive some sort of रिटर्न फ्रॉम दोज पर्टिकुलर एसेट. ठीक है, तो ये आपका इसलिए यहाँ पे रहता है. जैसे कैश एडवांसेज एंड लोन्स मेड टू अदर कंपनीज, तो ये आपका आउटफ्लो. ठीक है, आप दूसरी कंपनी को लोन दे रहे हो. ठीक है, दैट इज आउटफ्लो. आपका कैश इनफ्लो, आप दूसरी कंपनी को जो लोन दिया था उसने वापस किया, या फिर आप उस कंपनी के शेयर्स जो आपके पास थे उनको सेल आउट कर रहे हैं. ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज टू एंट्रीज, जिसको आप ध्यान रखें क्योंकि आप इनको हमेशा फाइनेंसिंग में डाल देते हो. ठीक है, financing activities. So whenever we talk about the financing activities, so they have a direct impact on the liability. ठीक है, so liability and equity of that particular company. ठीक है, so if there is inflow, so अगर आपका inflow हो रहा है, ठीक है, so that means liability and equity will increase. If there is an outflow, so liability and equity will decrease. ठीक है, जैसे लेट्स से योर कंपनी दे इशू देयर शेयर्स. ठीक है, आप कोई XYZ कंपनी है जिसने आपका मार्केट में शेयर्स इशू किए. ठीक है, वर्थ रुपीज 500 करोड़. ओके, सो दिस इज एन इनफ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड इट विल लीड टू इंक्रीज योर नंबर ऑफ इक्विटी. इससे हमारी इक्विटी क्या होगी, आपका इंक्रीज होगी. ठीक है, दूसरी तरफ आपका इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड वन, लेट्स से यू आर गोइंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स. ठीक है, तो आप अगर शेयर बायबैक करोगे, so you have to make payment to those shareholders, so that is an outflow from financing activities. You are taking loan from XYZ bank, your company is going to take some loan from XYZ bank, so that is an inflow from financing activity. You are paying off your debt, so that is outflow from financing activities. Okay, so financing activities include activities that result in changes in size and composition of the contributed equity and borrowings of the company. ठीक है, so these financing cash flow activities include cash flow associated with borrowing and repaying a bank loan, issuing and buying back shares. So the payment of dividend. हाँ, see one more things. ठीक है, if your company is, I'll clearly mention here. ठीक है, if your company is paying dividend, ठीक है, so अगर आप dividend pay कर रहे हो, so it is an outflow from operating activities. ठीक है, if your company, sorry, financing activities. ठीक है, if your company is paying dividend, अगर आपकी कंपनी dividend pay कर रही है, so it is categorized under operating financing activity as mentioned here. ठीक है, if your company is receiving dividend, if your company is receiving dividend, so it is inflow under operating activities. ठीक है, तो इसका जो हैंडलिंग है वो कुछ आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा. ठीक है, सो कैश प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर एंड अदर इक्विटी शेयर्स. ठीक है, तो अगर हम आपका शेयर्स इशू कर रहे हैं या आपने कोई अदर जैसे आपका प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स एंड ऑल इशू किए हैं. ठीक है, कैश पेमेंट टू ओनर टू एक्वायर और रिडीम द entities shares, that means you are doing buyback of shares. Cash proceed from issue of debenture, loan, bond, mortgage and other short term long term borrowings. ठीक है, तो आप लोन ले रहे हैं, आप बॉन्ड इश्यू कर रहे हैं. ठीक है, ये सब आपका कैश पे रीपेमेंट ऑफ अमाउंट बोरोड, आप कोई लोन आपका पे ऑफ कर रहे हैं अदर्स. ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल क्रक्स है. ठीक है, और इसका रिवीजन आपका हो जाएगा विद दिस पर्टिकुलर चार्ट. ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, सो यू विल सी द एंट्रीज. अब नाउ व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन यू गाइस आर गोइंग टू फेस इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द रिकलेक्टेड वन. ठीक है, पिछले उनमें कैसे हम लोगों ने आपका फेस किए, जब मैंने खुद दिया या लास्ट टाइम अगेन आई विजिटेड दिस सेंटर, तो मैं हर बार आपका सेंटर जाता हूँ कि क्या चेंजेस IIBF लेके आ रहा है अपने सीक्वेंस के अंदर एंड ऑल. ठीक है,
सो क्या आपकी फाइंडिंग्स थी, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। बिलीव मी गाइस, अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं, क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप आने वाले एग्जामिनेशन में काफी अच्छा स्कोर करने वाले। सो वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस अ सेट ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन फॉर 2 मार्क्स, ठीक है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था जब मैंने आपका ये पेपर दिया था, ठीक है, और इवन लास्ट ईयर ऑल्सो, ठीक है। सो आपका ये क्वेश्चन ही दो तरीके से हो सकता है, वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्विकली गो थ्रू। सो वी हैव पर्टिकुलर्स and we have nature of cash flow. So you have to match your particulars with nature of cash flow. ठीक है, तो first one is redemption of shares. Redemption means buyback of shares. ठीक है, so what we are doing, a company is buying back their shares from the investors. So that means it is an outflow. ठीक है, ये क्या होगा उनके लिए, आपका outflow होगा। अगर आप उनसे शेयर्स खरीद रहे हो तो जो आपने पैसा लिया था उनको वापस देना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आउटफ्लो ऑफ शेयर्स अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ठीक है। सो अगेन इट इज एन आउटफ्लो, एंड जो आपके पेमेंट्स हो किसके लिए, आपका क्रेडिटर्स के लिए है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लोन एंड एडवांसेस ग्रांटेड, योर कंपनी हैव गिवन लोन टू सम अदर कंपनी, सो इट इज अगेन एन आउटफ्लो एंड इट इज अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो नाउ दिस इज द वन, यू कैन इजीली मैच दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। तो आप जैसे क्या है, पहला फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मींस ए का पहला होगा, आपका बी का क्या होगा, पेमेंट टू क्रेडिटर्स आपका, दिस इज आपका बी का तीसरा, ठीक है, बी का तीसरा, ए का पहला, एंड सी का क्या हो जाएगा, आपका दूसरा, ठीक है। सो फर्स्ट 3 2 1 3 2 1 3 2, दैट मींस आपका डी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। फर्स्ट टाइप आपका जो रहेगा। अब सेम क्वेश्चन व्हाट दे कैन डू, like they can give you some entries also, take a redemption of shares आपका let's say 500 crore 50 crores, ठीक है। Payment to creditors suppose that 10 crores, loan and advances granted suppose that 5 crores, some other entries, and they'll ask you calculate cash flow from operating activities or financing activities and all, ठीक है। we'll practice that kind of question also, ठीक है। तो पहला question, next, ABC Corporation is a manufacturing company. During the year company made following investing activities, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का नहीं है ये, ठीक है। सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का वो आपको दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट, सोल्ड अ पीस ऑफ मशीनरी 20,000, परचेज अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी 1,50,000, acquire a patent a new product 10,000, made a long term investment in share of another company 30,000. So what you have to do, you just have to do plus minus for these investing activities, okay। तो क्या होगा, अब इनमें आपको पता है कि कौन सा इनफ्लो कौन सा आउटफ्लो, आसानी से आंसर निकल जाएगा। सोल्ड अ पीस ऑफ मशीनरी मींस इनफ्लो, ठीक है। आपका परचेज अ न्यू मशीन, दैट मींस इट इज आउटफ्लो, ठीक है। एक्वायर पेटेंट आपका आउटफ्लो, ठीक है। एंड मेड अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो, सो आउटफ्लो इज हायर साइड, ठीक है। आउटफ्लो इनका ज्यादा है, कितना, 30,000, 40,000, 1,90,000, ठीक है। 1,90,000 minus 20,000 which was inflow, so their cash flow from investing activities will be 1,70,000, ठीक है। So cash outflow 1,70,000, cash outflow 1,70,000. So this will be your answer for this particular question. Understood? समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना? Do mention, थोड़ा सा comments किया करो, ठीक है, बताया करो, जिससे मुझे पता चलेगा कि चीजें आप सेम लाइन में हैं या नहीं है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो आसान था, अब इसमें थोड़ा सा दिमाग का खेल लगेगा फिर से कि कौन सा सही कौन सा गलत, मतलब आपको पिक करना होगा, ठीक है। सो देयर आर सम एंट्रीज गिवन अबाउट अ कंपनी, ठीक है। एक कंपनी के बारे में आपको कुछ एंट्रीज, मतलब उसकी जो कैश इनफ्लो आउटफ्लो की एक्टिविटीज आपका दे रखी है, ट्रांजेक्शन्स आपका। सो बेस्ड ऑन दिस गिवन इंफॉर्मेशन यू हैव टू कैलकुलेट आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एंड आई एम क्लियरली सेइंग these all entries are not belongs to investing activities। तो अब ऐसे क्वेश्चन के लिए आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अगर क्लियर है, जो हमने अभी मैंने आपको रिवाइज भी कराया या जो फाउंडेशन में डिटेल में पढ़ा है, तो इसलिए मैं हमेशा पिच करता हूं आपको फाउंडेशन, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। जरूरी कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं क्या जो इरेलीवेंट कहानियां उनको नहीं, जो जरूरी है वो पढ़ना है, ठीक है। सो नाउ दिस इज द वन। अब यहाँ पे अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया विच बिलोंग्स टू इन्वेस्टिंग और विच इज नॉट पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो देखते हैं। Purchase of fixed asset, it is investing activity, so it is an outflow for company। Purchase of investment आपका 10 लाख 30 लाख, ठीक है, so it is an outflow आपका investing activities, ठीक है। तो ये ऐड आपका होगा, माइनस आउटफ्लो है दोनों, ठीक है। फाइनल डिविडेंड पेड,
सो फाइनल डिविडेंड पेड, सो दिस डिविडेंड पेड, और अगर रिसीव होता तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता, सो इट इज पेड, इट इज a financing activity, it is financing activity, it is outflow, but it is not part of investing because we have to calculate investing. So there is no role of this particular transaction in our question, right? Repayment of loans, again आपका repayment of loan, it is an outflow, आपका financing activities, so there is no role of this particular one as well. Proceed from sale of intangible asset, proceed from sale of intangible, let's say this company, they sold out their some patent or some copyright, so that is investing activity, inflow from investing activity. So now the question is very simple. So their outflow is 30 lakh, their inflow is 12 lakh, that means cash outflow 18 lakhs. ठीक है, 30 minus 12 18, cash outflow 18 lakhs, so cash outflow 18 lakh. ठीक है, so cash inflow, हाँ, so option A only will be correct answer for this particular one. Understood guys, yes or no? So these two, dividend paid and repayment of loan, these are cash outflow from financing activities, not from investing activities. So there is no role of these two in our question. ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं. Which of the following transaction would appear under financing? And now this is the half marks question. ठीक है, तो हमने 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का. ठीक है, दिस क्वेश्चन वाज फॉर 2 मार्क्स, इससे पहले वाला वाज फॉर 1 मार्क्स. ठीक है, इससे पहले वाला फॉर 2 मार्क्स. ठीक है, नाउ वी विल प्रैक्टिस हाफ मार्क्स क्वेश्चन. आधे नंबर के जो क्वेश्चन हो कैसा आपको मिलेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, सो आउट ऑफ द गिवन वन, सो यू हैव टू फाइंड आउट फाइनेंसिंग एक्टिविटी. सबका बेस है आपका क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट. अगर आपको वो याद हो गए, प्रैक्टिस कर लिया, तो फिर ये आसान है बच्चों का खेलने टीम. सो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, परचेज ऑफ मशीनरी, इट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. Sale of good on credit, it is operating activities. Issuance of equity, so it is financing activity. Payment to supplier, again operating activity. So without any doubt C will be correct answer for this one, right? आगे बढ़ते हैं. If a company cash flow statement show a significant outflow in investing activities, which of the following is most likely explanations? So if a company cash flow statement shows a significant outflow in investing activities, so the company issue a new shares, it is financing activity. Same ही question ये भी आपका. ठीक है, company repaid a long term loan, it is आपका again financing activities. Company purchase new equipment, it is investing activity. आपका कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड, अगेन आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी. ठीक है, तो हमें क्या ढूंढना था? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग. तो इन्वेस्टमेंट मींस आपका ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन. अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन, which of the following statement is true regarding the differences between cash flow and fund flow? ठीक है, the another part, the 10% weightage side from this आपका this particular unit itself. ठीक है, तो फंड फ्लो का जैसे मैंने बोला इसका इंपॉर्टेंस क्यों नहीं है, क्योंकि वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं. ठीक है, अब देखो फंड फ्लो क्या होता है ना, कैश फ्लो हमने समझ लिया, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश ड्यूरिंग दैट अकाउंटिंग पीरियड. ठीक है, सो फंड फ्लो इज समथिंग की लाइक जैसे ये कैश फ्लो का जो है ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस. ठीक है, फंड फ्लो क्या होगा? ईयर ऑन ईयर बेसिस पे. ठीक है, लाइक हाउ वी जनरेटेड फंड्स एंड हाउ वी इन्वेस्टेड देम. ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म उसके लिए आपका उसका यूज होगा. ठीक है, सो कैश फ्लो स्टेटमेंट इंक्लूड नॉन कैश ट्रांजेक्शन? नो, आपका ऐसा नहीं. ठीक है, फंड फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस. कैश फ्लो स्टेटमेंट बेस्ड ऑन एक्रूल बेसिस? नो. कैश फ्लो स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट चेंजेस इन कैश पोजीशन? बिल्कुल सही है आपका, बिगिनिंग और एंड. फंड फ्लो स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल? इट कैन बी. फंड फ्लो स्टेटमेंट इंक्लूड ओनली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? कैश फ्लो स्टेटमेंट, नो, ऐसा भी नहीं. तो सी शुड बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन. ठीक है, so cash flow statement provide information about the cash and equivalents entering and leaving the company. Fund flow statement, on the other hand, shows the changes in financial position, particularly focusing on the sources and uses of funds. Sources of funds means liability or equity and uses is basically asset. ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बोला कि how like that company is changing their position year on year basis. ठीक है, आपका कैश फ्लो क्या है? लिमिटेड अकाउंटिंग पीरियड में. फंड फ्लो क्या है? आपका जो पैसा बना था उसको कहां पे इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो लाइबिलिटीज कैसे बढ़ रही हैं और आपके एसेट्स कैसे बढ़ाए जा रहे हैं कंपनी के द्वारा. ठीक है, तो दैट इज द वन.
अगला क्वेश्चन, दिस वाज फॉर 1 मार्क्स, ठीक है, ये जो पिछला क्वेश्चन था। द कैश फ्लो एक्टिविटीज ऑफ अ फर्म आर फर्दर कैटेगराइज, तो ये तो हमने बहुत आसानी से पढ़ लिया, ठीक है, 3 एक्टिविटीज, ठीक है। So this categorization is in accordance with Accounting Standard 3 and Accounting Standard 7. ठीक है? Which of the following is correct entry with regard to operational activities in cash flow statement? ठीक है? तो operational activity कौन सा है इसमें? Cash received from sale of good, operating activities. Cash payment, supplies, operating activities. Cash received from royalty, fee, commission, dividend, operating activities. So क्या होगा? All are operating activities. ये सारे ही क्या हैं आपका? Operating activities. ठीक है, next one. Which of the following is correct with respect to cash flow from investing activities? ठीक है, इनमें से कौन सा investing activity है? Half marks. Cash proceed from issue of shares or other equity. Cash proceed from issuing of shares and other equity, financing activity. ठीक है. Cash payment to acquire property, plants, equipments, investing activity. Cash receipt and payment of insurance entity for premium and all, so operating activity. Cash receipt from royalty fee commission, operating activities. ठीक है, तो अब देखो ये क्वेश्चन ना ऐसे भी हमें क्या पूछा गया था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। अब वो इन्हीं को नंबर में आपको दे सकता है कि एक कंपनी जिसका कैश प्रोसीड फ्रॉम इशूइंग ऑफ शेयर्स इज 500 करोड़, आपका प्रॉपर्टी प्लांट्स एक्विजिशन इज लेट्स से 100 करोड़, आपका इसका कुछ नंबर इसका नंबर, तो बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो वो चीज आपको समझ गई तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Create cash flow from investing activities using the given information. Purchase of fixed asset 20 lakhs, purchase of investment 10 lakh. Fine. अच्छा, okay. We have already solved this particular question. तो क्या था आपका आंसर? These two will be these are outflow from investing activities. There is no rule of dividend and repayment, and this is inflow. तो कितना था? 18 lakh cash outflow. ठीक है, 18 lakh cash outflow is the right answer for this one. हमने डिस्कस कर लिया था इसको। ठीक है, as per the cash flow statement, dash activities are principal revenue generating activities. So what will be our correct answer? Operating activities will be part of this one. Okay. Next one. Accounting Standard 3 and Indian Accounting Standard 7 that generally deal with the guidelines toward the preparation of cash flow statements. ठीक है, हमारा जो पहला discussion था आज का. Next one. Dash activities as per cash flow include activities that result in change in size and composition of contributed equity and borrowings. तो क्या हो जाएगा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, so financing activities will be right answer. Next one, the sale of asset for profit impact which of the following head of cash flow statement? See, it will impact two accounts. क्या है आपका पहला, सेल ऑफ एन एसेट, जैसे हमने एक मशीनरी हमारे पास थी या कोई इन्वेस्टमेंट था, हमने उसको सेल किया। ठीक है, सेल किया मींस आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, सॉरी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, पहले तो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इनफ्लो होगा, दूसरा जो प्रॉफिट कमाया दैट प्रॉफिट हमने इसको प्रॉफिट पे बेचा, सो इट विल हेल्प अस इन रेवेन्यू जनरेशन, तो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो क्या आंसर होगा आपका, इन्वेस्टिंग एंड ऑपरेटिंग। ठीक है, सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ए एंड बी है इसमें। ठीक है, हाँ है, ए एंड बी है, तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। सो ऑन सेल ऑफ एसेट प्रॉफिट impact both operating and investing activity of business. ठीक है, और किस तरीके से है that we have discussed. ठीक है, next one, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं पेयरिंग वाला, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व क्या होता है, समझ में आता है सबको? ठीक है, तो जब हम कंपनी शेयर इशू करती है तो एक फेस वैल्यू होता है और एक आपका मार्केट प्राइस। ठीक है, लेट्स से फेस वैल्यू वाज 10 रुपीज, मार्केट प्राइस वाज 500 रुपीज, तो दैट दिस गैप फोर आपका जो 490 का गैप है दैट इज कंपनीज प्योर अर्निंग। ठीक है, उसको हम कहां पे रखते हैं, शेयर प्रीमियम रिजर्व के अंदर। So it is an inflow from financing activity. ठीक है, तो क्या होगा, inflow financing activity. Redemption of preference shares, they buy back or they bought back the preference shares from the investors. ठीक है, तो क्या होगा आपका, outflow from financing activities. Payment to creditors, outflow operating activities. Loan and advances granted, outflow investing activities. ठीक है, now you can do the basic math. ठीक है, तो आप इसको मैच करना, पहले का आपका पहला, दूसरे का कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सेकेंड आपका था फाइन कैश आउटफ्लो फ्रॉम दूसरे, पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, पहले का पहला, दूसरे का तीसरा। ठीक है,
आपका तीसरा पेमेंट टू क्रेडिटर्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सी का दूसरा बोला है, सी का नहीं ये नहीं होगा, मतलब ठीक है ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। पहले का पहला ये तो हाँ ये नहीं होगा। पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, सी का चौथा, ठीक है सी का चौथा, हाँ। सो दिस विल बी आवर आंसर, सी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था, अभी भी आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन गाइस। ओके दिस इज इट, ठीक है। तो ये आपका कैश फ्लो एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। इसी तरीके से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। आई होप नाउ यू कैन रिलेट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो हमने पहले पढ़े थे और यहाँ पे जो प्रैक्टिस है। स्टिल इफ यू आर फेसिंग सम डाउट, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल group basically where you can write your queries or you can send me DM also, you can do the DM things, ठीक है। आप डायरेक्टली मैसेज मुझे कर सकते हैं अगर कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं। if you need any help from my side, so I'll try my best, ठीक है। so guys now your dates are out, ठीक है। May is the month, ठीक है। May month आपका जहाँ पे सारे एग्जाम आपके होने वाले हैं एंड PPB एंड AFM बैक टू बैक 2 दिन 2 पेपर होंगे। सो यू हैव टू प्रिपेयर वन सब्जेक्ट फ्रॉम लाइक अभी से आपको उसका प्रिपरेशन करना होगा बिकॉज एट द एंड लाइक विद इन 1 वीक कवरिंग PPB एंड AFM विल बी अ टफ टास्क, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा धीरे धीरे करके एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट विद IE and IFS and AFM एज ऑफ नाउ। सो वंस लाइक बाय द एंड ऑफ मार्च मैं आपको ये दोनों करा दूंगा। देन आपका अप्रैल मंथ वी विल स्टडी दी लाइक 70-80% PPB और आपका 20% आपका RBWM इज वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट जहाँ पे हम आसानी से 65 आपको ला के दे देंगे, ठीक है। तो ये आपको रेगुलर बेसिस पे थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कीजिए और अगर कोई डिफिकल्टी कोई चैलेंजेस आ रहे हैं जस्ट डू लेट मी नो, आई विल ट्राई माई बेस्ट आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने में, ठीक है। तो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड गाइज, थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, आई विल सी यू टुमारो एट सेम टाइम, बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।